હાલો સર, હું રિજોઈન કરું છું, અવાજ નથી આવતો. So, good morning once again. I hope that I am audible to everybody, and I am sharing a screen with you that we have understand the. As you can see, We have started with the unit number 2, right? So I hope that is the screen is visible. Yes, sir. Okay, am I audible? Just mention yes so that I can get idea. Okay. So based on that, we can yes. So many of you are getting my voice. So okay, fine. So everything is fine from the audio point of view, from the screen sharing point of view. So let us start with the straightforward that uh, just tell me that in the previous session we have given one task to you that at least you should have to refer the 2 to 3 websites, right? So how many of you have referred that websites and see their functions and whatever you find very interesting? So anybody? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टास्क तुमने આપ્યું તો યાદ છે एक को मैंने टास्क दिया था कि अगले सेशन में जब आ गया तब आप मुझे ये बताएंगे कि इस तीनों वेबसाइट में से आपको क्या अच्छा लगा फिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली राइट Yes, sir. हाँ Sir. ओके सो कितने लोगों ने किया है वो वर्क वो यस बोल दे उससे मैं पूछ लेता हूँ ठीक है यस आई हैव कंप्लीटेड द task that mentioned just that yes done okay Kushi have completed. See, whenever we are assigning some task to you, it is always in the benefit of you. The loss is yours, right? So at the end of the, you can simply say, at the end of your diploma, you have to present your authorities. So you will at that time you will fail. So that is the simple funda. If you are not going to work hard in the semester in the diploma program, so it will definitely cause an effect, right? So the consequences are very bad. So you cannot imagine the consequences, right? उसका क्या परिणाम आएगा आप वो सोच नहीं सकते अभी आपको जो मैंने आप टास्क ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अकेला मेरा टास्क ठीक जहाँ पे भी आपको कॉलेज में कोई भी फैकल्टी की ओर से आपको टास्क दिया जाता है वो आपके बेनिफिट के लिए ही है तो अगर अब ये आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली ठीक है तो लॉस तो आपका ही है आप खड़े नहीं रह पाओगे छः छः सेमेस्टर खत्म करने के बाद आप अपनी स्किल के बेस पे आप खड़े नहीं रह पाओगे किसी के सामने टिक नहीं पाओगे राइट सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड राइट तो आपको कुछ नहीं आता होगा कि जिन्होंने वर्क किया है उसको तो सारा कुछ मालूम होगा राइट so that's why I'm emphasizing on that you need to work on your skill every month every 1 month you have to add 2 skills आपको हर महीने 2 स्किल ऐड करना जरूरी है राइट okay so let us go back that only Khushi have completed anybody else जिन्होंने मैंने टास्क जो किया था थोड़ा सा भी 5 मिनट नहीं मैंने आपको आधा घंटा बोला था राइट हाफ एन आवर बट आपने 5 मिनट भी देखा हो तो बताइए आपका एफर्ट आपको दिख जाएगा ओके संतोष जैनब एंड खुशी હા હા ओनली સર, 3 people હલો. यस चला हाँ बोलो
ક્વિકલી બોલો, કામ છે. So, okay, so out of, let us say, this is your competition level, you can simply understand, right? So in this meeting, there are 26 people are there, right? Okay. So 26 people are there. So out of 26, right, only 4 or 5 students, right? So what will be the ratio? So simply just divide 5 divided by 26. Only 19% students have completed the work, right? Sir, So in the, so I'm just giving you a brief idea, so you will have an idea. Let us say it is, if I want to select only 5 people or 50 people from the 2500 competitors, right? So that is also similar kind of task, right? So every time do your work with the quality. If you have any kind of trouble, need ask ask the faculty members to help you, right? So that you can have an idea of the examination point of view as well as your skill point of view, right? So you just ask yourself, right? And just compete with yourself only. ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि उसको 6 CP आया तो अब तो मेरा तो 6.5 है. आपको खुद से कंपेयर करना है और खुद आगे बढ़े कि नहीं वो आपको देखना है, राइट? So let us go for that session. So what we are discussing about, yes. So I will ask only for that 4 or 5 people, right? So if you are absent in that session, you need to work accordingly, right? You need to ask your friend, you need to ask for the recording or anything, right? So yes, in the previous session, we have started our journey. We have begun the journey of highway development in India, right? So one committee was set up in the 1927. Okay, so that era is the complete independent era, right? So you can simply say that the independent movement just started, and we are on the verge of getting the independence, right? Right. So in 19, let us say 20 years before our independence, right? So that is the case. So in the 1927, what we have discussed is there is a committee name is Jaikar, right? And the Jaikar committee has suggested 4 points, 4 guidelines, let us say. However, the report is very long, right? But we can summarize that report into four points. So first suggestion is given that the local government should not have the sufficient finance and sufficient technological capacity. So that's why in case of highway development, you need to the central government, right? So the national interest will take care of the highway development. So the highway network we are developing in our country should have the national interest, because the more efficient your highway network, that means more efficient and more and high rate of the economy, right? Economical activities in your country will increase because of the very good quality and efficient road network. So the first they have suggested you need to take care the highway development as a national interest, right? Then where do you get the funding? You will get the funding from the levy the extra tax on the petrol and diesel, right? So what is the rate of the petrol and diesel? Okay, that you need to take care, and accordingly you need to apply the tax percentage, right? So they have simply suggested just apply the 2% or 2 paisa at that time, right? 2 paisa is a big amount, or 2% you can simply say tax, so that they can generate the fund. Another third point you can simply say we require a semi-government and official technical body and advisory body, right? And one national level institution that will carry the research in the field of highway and transportation engineering. So by the third point, we have one body, you can simply say Indian Road Congress in 1934, right? So in the 1934, we have established the Indian Road Congress. And in that, the function of the Indian Road Congress, you can simply say to provide the national platform. Okay, forum means a platform
वो आपको नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और आपको गाइडलाइंस देगा, राइट. Then another these things we had already discussed. So another thing is Central Road Research Institute. Okay, so that comes under the CSIR. If you just have a visited the website of the CSIR, you will get the idea how it works. The number of scientists appointed by the central government are comes under this department. So if you want to understand how scientist works, right? So you just check the website this CSIR and you will get the idea. Okay, so there are micro level research programs are there which will help to grow our country. So Central Road Research Institute, this the function of these things we had already discussed. Now the question is those who have referred, right? Let us say how many from the four students, right? So from Santosh, Khushi, and Jainab, right? And who is the fourth one? Santosh, Khushi, and Jainab, right? So out of this three person, કોને refer કરેલી છે? We have referred this IRC website and just give us a brief summary. Anybody? So I'm asking your experience, right? Experience based on that. You have referred this website and what is your experience? What new information that you get from that website? Okay, I'm asking these three person only, Khushi, Santosh, and Jainab. સર Yes. એમાં છે ને મેં એની વેબસાઇટમાં બે વસ્તુનું સર્ચ કર્યું હતું કે એના વિઝન અને એના મિશન શું છે. Okay. એટલે એનું અત્યારનું જે વિઝન છે એ લોકોનું ઈ છે કે એ લોકો વધારે એફિશિયન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ઉપર એમ કરે કે જેનાથી એ લોકોના રોડ ક્રેશિંગ ને એ બધું ઓછું થાય. એમ ઝીરો રોડ ક્રેશિંગ ફેટેલિટીઝ ઓછી થવી જોઈએ અને એ લોકોને એવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરે કે એ લોકો ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં પણ હેલ્પ કરી શકે એવી રીતે. અને એ લોકોનું બીજું વિઝન ઈ છે કે એ લોકો પોતાની જે બધી જે સિસ્ટમ ને એ લોકોના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે ઈ છે ને ગ્લોબલ જેને કહેવાય ને ગ્લોબલ કમ્યુનિટી હારે કમ્બાઈન કરીને એ લોકો એના જેવા રૂલ્સ બનાવે કે લેસ પોલ્યુટિંગ કન્સ્ટ્રક્શન થાય, લેસ પોલ્યુશન થાય એવી રીતે કન્સ્ટ્રક્શન થાય અને મોસ્ટલી રિસાયકલ્ડ વસ્તુમાંથી રિસાયકલ્ડ વેસ્ટમાંથી લોકો કન્સ્ટ્રક્શન કરે. જેમ કે આપણે ઓલી લેબમાં જોયું હતું કે આપણે બિટુમિન યુઝ કરીએ છીએ કારણ કે બાય પ્રોડક્ટ ઓફ ક્રૂડ પેટ્રોલિયમ ઓઇલ છે એટલે. Right. So the main, yes. હા, એ પછી એ લોકોનું મિશન શું છે કે એ લોકો વધારે પ્રોપર સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન વધારતા જાય એમ દિવસે દિવસે જે પ્રમાણે નવી ટેકનોલોજીસ આવતી હોય એ પ્રમાણે એ લોકો એના સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન વધારે પ્રોપર કરતા જાય અને એ લોકોના ટ્રાન્સપોર્ટેશન એફિશિયન્ટ અને વેલ ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ હોય જેનાથી મોબિલિટીમાં છે ને પ્રોબ્લેમ ના આવે એમ કે ટ્રાફિકના ને એના અને સેફ રીતે લોકો એનો યુઝ કરી શકે. Right. So the basic thing, yes, very important thing, we need to deal with the pollution. Okay, we need to take care about the temperature rising every year, right? So for that they have suggested that we need to use the concept of the waste from the best. Okay, हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से हमको बेस्ट बनाना है, ठीक है. और मीनवाइल वो प्रोसेसिंग के दौरान वो जो प्रोसेस हो रही है वेस्ट में से हम बेस्ट बनाने की, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू आप बात कर ले, ठीक है, या फिर हाईवे नेटवर्क की बात कर ले, तो उसमें भी वो हमें ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन, हमारा जो एनवायरमेंट है उसका पूरी तरह का ध्यान रखा जाए, ठीक है. तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है. आप ऐसे ही आप काम करते रहिए, so nobody will compete you, right, Khushi? So Thank you, sir. very good. Very good. You can simply say that if you put an effort, we are there, right? So is you can simply say hungry for the knowledge. Yes, learning. If you want to learn something new, just always be hungry, right? Anytime.
सो आपको मतलब ये जो आप नॉलेज है आप उसको आपकी भूख होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप खाना खाने के लिए 3 बार जाते हैं, सो वैसे ही हाँ, कब कुछ कुछ लोग तो 5 बार भी खा लेते हैं। तो वैसे ही नॉलेज, वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द नॉलेज एंड लर्निंग, आपको उसकी भूख होनी चाहिए कि सर मुझे सीखना है। आप एफर्ट्स लगाओगे तभी आपको गलतियां होगी, और वो गलतियां को सुधारते सुधारते आप सीखते जाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना था। ओके, सो ओके नाउ हु हैज रिफर्ड द सीआरआरआई वेबसाइट? जैनब और संतोष? મારા IRC માં છે હજી મારી પાસે પોઈન્ટ. यस सर ओके, आईआरसी में CSR पॉइंट्स। हाँ, સર okay, so એનો yes, હોમ we can discuss. Yes, Jainab, yes. સર If we are સર talking about the IRC, IRC yes. નો સર IRC નો મેન તો એનું હોમ પેજ છે ને સર, જે મેન એમાં આપણે આપણે રોડ્સ ના રિલેટેડ આપણે એમ કહીએ ને તો આખું ઇન્ડિયાના જે નેશનલ હાઈવેઝ છે, મેન બધા રોડ્સ છે, એમાં જે કઈ પણ અપડેટ થતું હોય ને સર, કે જે હજી કોઈને ખબર ના હોય એ બધા આપણે છે ને એમાં એ લોકો એક મેપ આપે છે, એના ઉપરથી આપણે ખબર પડી જાય છે. અને રોડ્સ ના રિલેટેડ કોઈ પણ નેશનલ હાઈવે કે લોકલ રોડ્સ કે જે કઈ પણ હોય ને સર, એ બધાના પ્રોપર જે ન્યૂઝ ને સૌથી કરંટ ન્યૂઝ હોય ને સર, એ બધા એમાં મળી જાય છે. અને એ લોકોની આખી એક ફોટો ગેલેરી છે કે જેમાં આપણે રોડ્સ માટે કયા કયા અવોર્ડ્સ મળેલા છે, કે Right. રોજના એ લોકોને કઈક અપડેટ્સ આવતા હોય, કાં તો પછી નવા નવા રૂલ્સ નીકળતા હોય, તો એના વસ્તુના એ લોકોને ગેલેરીમાં મૂકેલા છે. અને એવી રીતે સર છે એમાં. અને મેન Right. તો So, સર એનું ન્યૂઝ નું જે છે ને અપડેટ, ઈ હરેક આર માં કઈ અપડેટ થતું હોય ને તો એક અપડેટ હોય છે એમાં. so it is very important, right? So if you want to learn any complex topics, I'm suggesting from your first semester, आप जब पहले सेमेस्टर में थे तब भी मैं आपको कहा था कि आपको कुछ भी नया सीखना है, ठीक है। कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे वो सीखना है, या फिर वेबसाइट को देख के आपको ऐसा लगे इसमें क्या है, मुझे क्या पता चलेगा, आप तुरंत जो है उस वेबसाइट की फोटो गैलरी में चले जाइए। आपको फोटोग्राफ देखने हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोग्राफ्स जो है वो आपको आपके माइंड में एक प्रोसेस, एक इमेज जनरेट करेगा, ठीक है। और वो फोटोग्राफ को देखने से आपको उस वेबसाइट में क्या है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ECDM में भी वही प्रोसेस किया था हमने, 13 अलग अलग वेबसाइट लेके, और सेम प्रोसीजर मैंने आपको वेबसाइट कैसे देखना है वो भी आपको सिखाया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये वेबसाइट भी चेक करनी है कि आप तुरंत फोटो गैलरी में चले जाइए किसी भी वेबसाइट की, आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें क्या क्या है, ठीक है। और यस, वेरी अपडेटेड न्यूज आर देयर, राइट। सो यू कैन कंपेयर दैट न्यूज विद द रियल वर्ल्ड। दैट मीन्स उन्होंने बताया है कि लेटेस्ट से राजकोट सिटी, लेटेस्ट से कि राजकोट सिटी में लेटेस्ट से टेक ए वन एरिया, राइट। सो लेटेस्ट टेक ए नाना मोआ सर्कल और एनीथिंग एल्स। सो लेट अस से 150 रिंग रोड, राइट। सो उसको कनेक्ट करने वाले जो रोड है या फिर उसमें से बाईपास जो बनने वाले हैं राजकोट के सराउंडिंग, उसकी अवरली अपडेटेड वो आपको वहां पे मिल जाएगी अगर वहां पे बनता होगा तो इसमें ये करंट न्यूज जो है 1 आवर इट इज अपडेटेड, राइट, अपडेटेड, यू विल गेट द न्यूज एंड यू जस्ट कंपेयर कि वहां बन रहा है कि नहीं। वहां पे तो न्यूज में तो लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा, यस, कि हम ये 10 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं, लेकिन आप जहाँ वहां जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप कंपेयर कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई दैट ट्रांसपेरेंट सिस्टम इज देयर। अगर नहीं है तो पूछ सकते हैं कि, सो दैट्स व्हाई वी आर लैगिंग इन दैट एरिया, राइट। हम पेपर पे तो अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे आए तो आपको पता चलेगा कि इट इज वेरी बैड, राइट। सो इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ओके फाइन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि you need to take care about all this institute. So this is, you can simply say, the backbone of our country, ठीक है। जैसे आपके रीढ़ की हड्डी होती है बॉडी में, वैसे ही ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है जितने अच्छे से काम कर पाएंगे उतने ही अच्छे से आपका कंट्री जो है आप आगे बढ़ पाएगा इकोनॉमिकली और एनी फील्ड, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें हमारा जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उनको रिटेन करना पड़ेगा, राइट। सो दिस हमारा ये कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट है वो इंडिया में रह के इंडिया के लिए काम करें, राइट। क्योंकि मेजोरिटी जो है यहाँ पे आपने उस जो है कदर नहीं किया या फिर उसका जो चाहिए वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया, वो क्या करेगा,
अपने टैलेंट के हिसाब से वो बाहर चले जाएंगे, और हमारे जो है, हमारा जो रोड नेटवर्क था वो इफिशिएंट बनने की बजाय वो दूसरे देशों का रोड नेटवर्क इफिशिएंट बनाना स्टार्ट कर देंगे. So we need to retain our scientist community also, right? But that is at a very high level. Okay. So now in case of Central Road Research Institute, so who have observed the website of CRRI? Sure. Okay, Santosh, just a minute. Santosh, यस आप सर. यस आप सर. दोनों को, यस संतोष, आपने ये वेबसाइट रिफर किया है? यस सर, किया था ऐसा, CSR किया हाँ था सर. हाँ, कोई बात नहीं, वो बताइए, क्योंकि सर अल्टीमेट थिंग है कि हाँ, कि आपको सर्च किया है तो आपको कुछ मिला होगा नया नॉलेज. सर उसमें ऐसा था कि एक उद्देश्य था कि हमें जो है रोड जो बनाना वो सेफ्टी को नजर में रखते हुए बनाना है सर. कि और जहां तक हो कि सर पोल्यूशन कम हो, डिजाइन ऐसा राइट. हो कि ताकि एक्सीडेंट ना हो. अगर कोई भी सर एक कर्व देते हैं तो वो कर्व कितना होना चाहिए कि ताकि हमें एक्सीडेंट कम हो. CRI सही का सर एक ही मुख्य उद्देश्य है सर इसका कि मेरा डिजाइन जो वो अच्छा हो, पॉपुलेशन के अनुसार मेरा जो प्लानिंग होगा वो पॉपुलेशन के आधार से होगा. उनके बाद सर जो भी अधिक से अधिक वेस्ट प्रोडक्ट है सर उसको यूज में लाया जा सके सर. राइट राइट, सही है. जैसे सर कोई भी ऐसे अभी एक ये खुशी ने एक उदाहरण दी सर बिटूमेन का. बिटूमेन एक सर ऐसा प्रोडक्ट है जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है सर, लेकिन उसको हम यूज करते हैं और यूज ही नहीं, उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है सर. अगर वो नहीं हो तो हमें कॉस्टली पड़ जाता है कोई भी सर रोड या हाईवे ट्रांसपोर्ट ये कंस्ट्रक्शन के लिए सर. जस्ट इमेजिन अगर बिटुमिन आपके पास नहीं होता, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, तो आप रोड किसका बनाते? तो सर कंक्रीट का ही बनाते जो कि कॉस्टली होता है सर. यस, एवरीबडी, आई एम जस्ट, दिस इज अ जनरल जस्ट थॉट प्रोसेस. जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग. ठीक है, आपके पास अगर इफ यू डोंट हैव ए बिटुमिन, राइट, ए वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, सो इट इज वेरी टफ टू बिल्ड अ रोड. ठीक है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इटली और जो रोम है, वो पहले वो बिटुमिन बाई प्रोडक्ट का रोड नहीं बनाते. वो कैसे बनाते? वो पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर है, उसको बिछा देते थे, फिर इसको क्रश करते थे, ऐसा करते थे. ठीक है, लेकिन वो भी कच्चा रोड बनता था. ठीक है, हाउएवर द लाइफ स्पैन इज वेरी गुड. ओके, उनका उनका बनाया हुआ रोड जो है 50 साल, कई सदियों तक चलता था, वो अलग बात है. लेकिन हमारे पास अब अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है. क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में आओगे, आप एज ए डिजाइनर वर्क करोगे, ठीक है, तो ये सारा आपको ही फेस करना पड़ेगा. सर अब टेम्परेचर सर 49 डिग्री हो गया, अब क्या करें सर? राइट, एवरेज टेम्परेचर 49 डिग्री हो गया लेटेस्ट से समर सीजन में, तो आपको उसके हिसाब से जो है आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. जहां कभी भी बारिश नहीं होती थी वहां सर बारिश आ गई, अब क्या करें? सो ऑल दिस क्वेश्चंस यू नीड टू डील विद. आपको ही डील करने हैं, चाहे आप कौन सी भी फील्ड में हो. ठीक है, आप अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में कहीं पे गवर्नमेंट में सेट हुए हो, या फिर आप खुद का जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने आएंगे ही. लेट अस से 2045, राइट, तो 2045 में जब आप एक एज ए इंजीनियर वर्क करोगे, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम आएगी. सर अब पॉल्यूशन लेवल इतना है कि मास्क भी काम नहीं कर रहा है, अब क्या करें? सर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हम वी कैन नॉट सर्वाइव इट, राइट, हमें कुछ अल्टरनेटिव चाहिए होगा. तो ये सारा जो काम है, ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन है ना, उसका अगर आपने ध्यान रख लिया अच्छे से, तो ये सारे चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेजोरिटी, लैंडस्लाइड कंट्रोल है, यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अभी आप समर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी आप देखिए आपको कितनी हीट आपको मिल रही है. ठीक है,
So the temperature goes high and high, right? तो यही आपको करना है कि जैसे मैंने आपको ऑब्जर्व किया मेरे ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि आप जो 3 या फिर किसी और ने भी किया होगा, ठीक है, लेकिन हालांकि वो बोल नहीं पाए, ठीक है, तो आपको यही चीज करती रहनी है कि कंटिन्यूअसली जो है आप एक एक स्किल ऐड करते जाइए अपने में। लॉकडाउन था, अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन आप खुद जाके अपने आप से पूछ लेना, ठीक है, आज घर पे जाके, घर पे ही हो, ठीक है, आप तो रात को जो है आपने पूरा दिन काम किया, इधर गए उधर गए, थोड़ा बहुत मूवी देख लिया, ये देख लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया, ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद एट द एंड जब आप सोने जाते हो, ठीक है, आप रेस्ट करने के लिए जाते हो, तब आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिएगा आप हर रोज कि आज जो मैंने काम किया, ठीक है, आज जो मैं सीखा हूँ, ठीक है, वो मैंने कितनी इफिशिएंसी के साथ किया। तब आपको खुद का ही जवाब आपको खुद को मिल जाएगा, ठीक है। कि आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेना कि लॉकडाउन ये था, ठीक है, हम 12 महीने जो है 11 मंथ जो है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो हम घर पे रहे, हम कॉलेज गए ही नहीं लेटर से, ठीक है, अब हार्डली कोई कभी बीच में आ गए, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन आप घर पे रहे, तो आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने क्या सीखा 11 महीने में, मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि जो मुझे एजुकेशन में आगे काम आएगा, ये पूछिएगा। और अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है आपका सेमेस्टर खत्म हो गया, कब आपका डिप्लोमा खत्म हो गया और आप जॉब के लिए मार्केट में आ गए। Okay, so only keep one thing in your mind. Always make a you can simply say the goal that learning, right? સર तो ये आप, हाँ, હજી CSR માં CSIR માં હજી પોઈન્ટ્સ છે. हाँ, yes, we will discuss that. That's why we will discuss that. But the thing is that every time you need to think about the learning कि मैंने क्या ऐड किया है अपने में, ताकि मैं आपको कंपैरिजन खुद से करना है। बाकी सारे क्लास में फेल हो जाए वो अलग बात है, आपको पास होना है। अगर आप पास है तो आपको आगे बढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले मैंने बताया था आपको क्लास में जब आए होंगे तो S=S, ठीक है। जब तक आप स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हो, तब तक आप सेफ हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे आप स्टूडेंट में से यहाँ मार्केट में आ गए बाहर, ठीक है, तब आपके सारी प्रॉब्लम्स, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वो खुद ही नया नया पार्ट सिखाती जाएंगी। जो आप मिस्टेक्स करोगे वो इरिवर्सिबल होगी, ठीक है। आप वापस से उसको खुद से करना चाहे ठीक तो भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आपने गलत कर दिया तो अगले मिड सेमेस्टर 2 में आप सही कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है, और कहीं पे भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आप काम कर रहे होंगे, तब आपको ये सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। एनवायरमेंट का तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट। सो ये भी एक है, ठीक है। अनदर थिंग, ओके, यस खुशी, एनी पॉइंट्स दैट यू वांट टू ऐड? आफ्टर दैट we'll યસ સર. go for the next slide. યસ CSIR નો એમ છે કે એ લોકો સારામાં સારું ડેવલપમેન્ટ કરે અને એવી રીતે ડેવલપમેન્ટ કરે કે આજના ટાઈમ્સમાં જે પણ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં જે પણ ચેલેન્જીસ આવતા હોય એને ઈ ઓન ધ સ્પોટ સોલ્યુશન મળી શકતું હોય ને તો ઈ કરે. એટલે એની માટે ઈ લોકો સારામાં સારી એફિશિયન્ટ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ટીમ છે ને એ બનાવે છે, જેથી સૌથી ક્લોઝલી ઈ લોકો જોઈ શકે, ઇન્ટરેક્શન્સ જોઈ શકે કે આજકાલના રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં કઈ ટાઈપ્સના પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. જે કોઈ પણ હોઈ શકે કે કઈ જગ્યાએ વધારે ટ્રાફિક થાય છે, કેટલા એક્સિડન્ટ થાય છે, કઈ શું કામે થાય છે, એવું શું રોડ અલાઇનમેન્ટમાં મિસ્ટેક છે કે અમુક કર્વ એવા હોય કે જેના લીધે એક્સિડન્ટ્સ થતા હોય. એટલે આનું સારામાં સારું રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે ઈ લોકો એક પ્રકારનું સબ બોડી બનાવ્યું છે, જેમાં ઈ લોકો નવી જે ઇનોવેટિવ ટેકનોલોજીસ આવતી હોય જે આપણને હેલ્પ કરી શકે આ સેક્ટરમાં, એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે અને એના લીધે જે સારામાં સારા સોલ્યુશન્સ મળી શકે ને ઈ પણ અપ્લાય કરે છે. અને ઈ લોકો આ વધારે ડીપલી સ્ટડી કરવા આનો ઈ લોકો છે ને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટના મોડલ બનાવીને પણ એને સારી રીતે સ્ટડી કરે છે એનો.
પછી સર Right. આપણે ઓલા દિવસે જે હાઈવે ટેકનોલોજીની લેબ હતી એમાં આપણે જોયું હતું કે બિટુમિન હોય કોઈ આ એરિયામાં કદાચ ઈ સમર સિઝનમાં ઓલું શું કહેવાય લિક્વિડ ફોર્મ થઈ જતું હોય પણ અમુક એરિયામાં ન થાય એટલે ઈ લોકો એની ઉપર રિસર્ચ કરતા રહીએ છે કે અલગ અલગ ક્લાઇમેટમાં કઈ ટાઈપનો રોડ કેવું રિએક્શન આપે છે એમ એના કન્સ્ટ્રક્શનમાં. Right. So these things we have discussed, right? સર Another website is Borth. You can simply say, સર right? હું કહું સર Yes. સર આપણે Yes. All yours. CRRI છે The ને stage. સર CRRI છે ને એમાં હજી ઉપર જે લોકો ઓપ્શન આપે છે ને સર એમાં એ લોકો હજી બીજા એક એમનું હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ નું એક ઓપ્શન છે ને સર એમાં એ લોકો કહી છે કે જે લોકો અનએમ્પ્લોયડ છે કે જે લોકો પાસે જોબ નથી અને જે લોકો પાસે ટ્રેનિંગ નથી પ્રોપર કે જે લોકો ભણી નથી શકતા એ બધા લોકોને પણ આગળ વધવાનો ચાન્સ આપે છે અને એના માટે છે ને સર એ લોકો આપણે રોડ ડેવલપમેન્ટ નું બીજું એક ઓપ્શન છે ને સર એમાં એ લોકો બધા આપે છે ઓપ્શન્સ કે એ લોકો શું શું પ્રોવાઈડ કરે છે એ લોકો ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ ને પછી અનએમ્પ્લોયડ લોકોને પછી એ લોકો સોફ્ટવેર ટ્રેનિંગ પણ કરે છે કે જે આ બધું આપણે શ્રિંકેજ ને જે બધું માપતા હોય તો એ તમે કેવી રીતે કરી શકો પછી આપણે કઈ જગ્યાએ કયા એરિયામાં કેવા મટીરિયલ્સ યુઝ થવા જોઈએ એટલે એવી રીતે એ બધાની ટ્રેનિંગ કરે છે એ લોકો એના ઇન્ટર્નશિપ્સ પણ આપે છે અને એ લોકો ડેલી વેજીસ ઉપર પણ એ લોકો માણસોને રાખે છે કે જે લોકોને જરૂર હોય અને એ લોકોને સાથે શીખડાવે પણ છે બધી વસ્તુ. Right. So that is the job. Very interesting. They are doing a fantastic job. You can simply say it is like a ISRO. अगर आप इसरो की वेबसाइट भी चेक करेंगे तो वहां पे रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एज ए स्टूडेंट जो है इसरो में जा सकते हैं आप ट्रेनिंग के लिए, बट कंडीशन ये है कि उनके क्राइटेरिया को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, वो ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं कि जिनको एक्स प्लस वाई का जो इक्वेशन जो मैंने आपको दो दिया लेटेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है टू समथिंग लाइक दैट, और वो मैथमेटिक्स में 2 ट्राई से पास हुआ है उनको वो अलाउड ही नहीं करते. राइट. तो उनके क्राइटेरिया बहुत हाई है. ठीक है, आप अपने जो एसपीएससी पे लाते हो मिनिमम 7.5 होने चाहिए, तभी आपको इसरो के अंदर आपको अलाउ किया जाएगा, आपको कुछ एज ए स्टूडेंट काम करना है तो. ठीक है, तो सभी जगह पे जो है आपको हमने एक वेबसाइट भी आपको भेजा था शायद कि आप एज ए स्टूडेंट कहाँ कहाँ जाके, मैंने आपको बताया ना एस इज इक्वल टू ए स्टूडेंट इज इक्वल टू सेफ. अगर आपसे गलती भी हो जाएगी ना तो अब आपको कोई नहीं बोलेगा कुछ, स्टूडेंट है तो आप सेफ रहेंगे. ठीक है, लेकिन आप वहां से जाने के लिए आपको क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ेगा उन लोगों का. ठीक है, तो अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में भी काम करना है, ठीक है, आप मैं बता दो, आप इसरो में सिविल इंजीनियर का काम है, काम क्या है बताएगा मुझे कौन? इसरो में सिविल इंजीनियर का क्या काम रहेगा? एनीबॉडी जिसका माइंड चलता है. સર એ લોકો તો આપણે બિલ્ડિંગ નું ને એનું જે બધું કન્સ્ટ્રક્શન ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માં ને એમાં જ સર એ લોકો કામ કરતા હોય ને મેન તો સર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માં ને એવી જ રીતે કરતા હોય ને કે See, yes. Basically, the foundation work is important. Every time you are launching a rocket, let us say, right? आप जब भी एक रॉकेट जो है ऐसा आप लॉन्च करते हो तो जब ये बूस्ट होता है, ठीक है, तो बूस्ट होता है तो वो किस पे खड़ा होता है? एक पेडल पे, एक कंक्रीट का पेडल होता है. ओके, आपने वो पढ़ा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में. तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहां खड़ा ही नहीं रह पाए. इसका जो लोड है रॉकेट का वो तो कहाँ पे रेस्ट करेगा? बॉटम फुटिंग, राइट? यू कैन सिंपली से पेडेस्टल, यू कैन सिंपली से. तो पेडेस्टल पे वो खड़ा रहेगा रॉकेट, तो उसको होल्ड करवाने के लिए ये जो बर्निंग टेम्परेचर उसको सस्टेन करवाने के लिए यहाँ पे हमें सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा रॉकेट जहाँ पे आप लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे बाजू में उसके सपोर्ट देने के लिए एक फ्रेम होता है, उसका डिजाइनिंग वर्क जो है वो भी कौन करता है? सिविल इंजीनियर करता है. सो इट इज लाइक दैट. ठीक है, सो यू कैन नॉट अवॉइड कोर ब्रांचेस फ्रॉम द मेजर सेक्टर्स. ठीक है, कोर ब्रांचेस इतनी है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, राइट? तो उनका यही काम है, एनवायरमेंट जो पोल्यूशन होता है वो कम कैसे करे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट कैसे हो पाए.
तो एज ए स्टूडेंट आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपको उनके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनके क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो उसके नीचे के लेवल में चले जाइए, ठीक है, क्योंकि हर एक को तो कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। किसी ना किसी को तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, ग्राउंड पे आके प्यून बनना पड़ेगा, राइट। तो सभी लोग साइंटिस्ट बनने लगे, सभी लोग इंजीनियर बनने लगे, तो झाड़ू कौन लगाएगा, या फिर प्यून का काम कौन करेगा? तो प्यून का काम और शॉपकीपर का काम वो लोग करेंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, या फिर वो उनका कुछ हालात ऐसा था, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा उनकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, ठीक है। लेकिन जो पढ़ पाए और कुछ स्किल ना हासिल कर पाए तो उनके लिए तो ये सारे है ही, ठीक है। तो क्लार्क की जो रिक्रूटमेंट आती है वो सभी उनके लिए ही आती है, ठीक है। सो बेसिकली जो है हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम जयकर कमेटी के आधार पर हम अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूट बनाते गए और प्लान करते गए कि कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव a मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दिस थिंग्स वी हैव। आप इसमें आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बारे में ही ये डील करता है। तो नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से जाता है, एक वर्ड था भारतमाला, किसी ने वो सर्च किया भारतमाला क्या है? क्योंकि यही आपकी यहाँ पे आपका इंटेंशन क्लियर होता है, ठीक है। अगर आप एब्सेंट है तो भी आपका दायित्व ये बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या हुआ, ठीक है, लेक्चर क्या हुआ। बी द चाइल्ड, राइट। जब आप फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, या फिर सेवन्थ फिफ्थ सिक्स सेवन स्टैंडर्ड, आप क्या करते थे? वो मैं स्कूल नहीं गया था तो अपने फ्रेंड की बुक उसके घर पे जाके ले आते थे, ठीक है, और उसमें से वो लिख देते थे कि यस, ताकि हमारी नोटबुक कंप्लीट रहे। तो वही प्रोसेस आपको कॉलेज में भी करना है, ठीक है। सो द MORTH इज ओनली टेकिंग केयर अबाउट द नेशनल हाईवेज, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बताया था कि एज ए हाईवे इंजीनियर जब आप काम करते हैं तब आपको ये लोकेशन का इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज द लोकेशन द हाईवे यू आर डेवलपिंग दे आर द की रोल, दे कैन प्ले a key role in case of any emergency situation, right? Let us say flood is there in some region, but the surrounding road network is very weak, you can say. So you cannot supply the raw materials, the food packets to army, right? So that is the importance. So now what we are taking care is, uh, so the planning and development actually started from 1943. 1927 में जो कमिटी बिठाई उसके आधार पे हम कुछ इंस्टीट्यूशन बनाते गए, उस इंस्टीट्यूशन ने कुछ काम किया, वो सारे काम मिलकर अब प्लानिंग चालू हुआ। क्योंकि पहला हमारे पास कुछ था ही नहीं, ठीक है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, सो वी हैव बिल्ट अप देयर। हमने ये बिल्ड किया और वो बिल्ट करते गए और साइड में प्लान भी बनाते गए। तो हमारे पास 19 हम हर 20 साल का प्लान लॉन्च करते गए। इतना आपको ये याद रखना है, हम हर 20 साल का प्लान बनाते गए और उस प्लान के हिसाब से काम करते गए। जैसे ही ये मतलब स्टार्ट हुआ 1943 में लेटर से, तो इसको क्या कहेंगे, नागपुर रोड कांग्रेस, ठीक है। वो नागपुर में एक मीटिंग हुई, उसके आधार पे वहां पे का प्लान जो था उसका नाम दे दिया गया नागपुर रोड कांग्रेस, राइट। कांग्रेस दैट मीन्स ए मीटिंग, राइट, ए टुगेदर, ए ग्रुप। सो नागपुर में ये मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो प्लान बनाया, राइट, उनके जो चीफ इंजीनियर थे उनको उन्होंने जो प्लान बनाया उसका प्लान का नाम जो है हमने रख दिया नागपुर रोड कांग्रेस। तो वो प्लान कैसा था? 1943 से उन्होंने प्लान जो बनाया 20 साल तक, वो 1943 से 1963, सो इट इज रिफर्ड एज अ फर्स्ट 20 ईयर प्लान, पहला 20 साल का प्लान, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूं किस तरह से काम करता है, ठीक है। सो अब जो है आफ्टर, अब हम कहां पहुंचे, 1963 तक थे ना, ठीक है।
हमारा प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1943 में पहला प्लान स्टार्ट हुआ नागपुर का, ठीक है। लेकिन उसका जो हमने प्लान सेट किया था, जो हमने गोल सेट किए थे, वो अचीव कर लिए 1960 गए थे 1963 तक। लेकिन हम उतने इफिशिएंसी के साथ काम किए कि हमने वो 2 साल पहले ही खत्म कर दिया। तो उसके लिए क्या हुआ, बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बॉम्बे में एक मीटिंग वापस हुई, ठीक है। और उसमें जो प्लान दिया गया उसको हमने बोल दिया कि बॉम्बे रोड कांग्रेस है, ठीक है। बॉम्बे में मीटिंग हुई, पहले नागपुर में हुई, तो नागपुर ने जो प्लान बनाया, ठीक है, 1943 से लेकर 1963, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका मेंटेनेंस है, वो उन्होंने ध्यान रखा, ठीक है। अब जो है ये प्लान हमारा 2 साल जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने एक और प्लान बना दिया, यू कैन सिंपली से द सेकंड 20 ईयर प्लान, राइट। सो बॉम्बे रोड कांग्रेस जो है उन्होंने एक प्लान दिया जिसको हमने कह दिया कि बॉम्बे रोड कांग्रेस। तो डेफिनेट है कि 1961 में स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक 20 साल ऐड कर दीजिए तो कितने तक चलेगा? 1981, राइट, राइट। सो उसका ये हो गया, उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए, उन्होंने कुछ एम सेट किए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1981 तक कितना हो जाना चाहिए का जो है, जो भी टास्क है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज इंस्टेबिलिटीज होती है, ठीक है, कंट्रीज में, ठीक है, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट का जो काम है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट शिफ्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये सारे काम जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है। सो कभी ये हो गया कि उनका केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक ये काम होल्ड पे रहेगा, ठीक है। आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से काम नहीं होता कुछ कई बार, तो वो डिसीजन पेंडिंग है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो नहीं आया है जजमेंट, ठीक है, या फिर दो जजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको रोज रिजोल्व करने में टाइम लग जाता है, बिकॉज अवर जुडिशियल सिस्टम विल टेक सो मेनी टाइम, ठीक है। सो दैट इज द केस। और उसके बाद जो है कुछ जो हमारा प्लान था, ठीक है, वो 1981 तक चला, और उसमें हम 20 साल ऐड कर देंगे तब हम कहाँ आ गए? ओके, सो दैट इज अ थर्ड 20 ईयर प्लान विच इज फ्रॉम 1981, ठीक है, टू 2001, ठीक है। तो पहला प्लान कब बना था आपको ये याद रखना है, 1943 से लेके सर हमारा स्टार्ट हुआ और वो 63 तक चला। हालांकि हमने उन्होंने 61 में कंप्लीट कर दिया लेटर से, ये प्रोसेस तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। उसके बाद 1961 से हमने 81 तक एक दूसरा प्लान चलाया, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये दूसरा था, ठीक है। और उसके बाद एक प्लान हमने एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है, थर्ड तीसरा प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान, 20 20 20, राइट। सो 60 years गैप इज देयर। सो 91 to 2001, तो हमारा ये काम है, जस्ट वी विल थिंक अबाउट ये प्लान में क्या था, ये प्लान में क्या था, और ये प्लान में क्या था, इतना हमारा कंसर्न है सिलेबस में, ठीक है। तो बाकी का सारा जो है एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ वो आप नेट पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इतना होना चाहिए। अब आप रिस्पॉन्सिबल ये है कि आप देखिए, वेबसाइट चेक कीजिए, इंटरनेट सर्फिंग कीजिए, और आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट फर्स्ट प्लान। सो और तीसरी जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? लखनऊ में। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लखनऊ रोड प्लान। तो हमारे पास 3 रोड प्लान आ गए। पहला जो प्लान है वो नागपुर रोड प्लान, ठीक है, जो है 1943 से स्टार्ट हुआ और 1961 तक चला। चला मीन्स दैट प्रोसेस इज ऑनगोइंग टिल नाउ, अभी भी ये प्रोसेस तो चालू है, उन्होंने जो सेट किया है वो भी प्रोसेस तो चालू ही है, ऐसा नहीं कि वहां खत्म मतलब खत्म, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस।
तो नागपुर पहला 20 ईयर प्लान देके गया, नागपुर में जो मीटिंग थी उससे। दूसरी मीटिंग वो 1980 तक का, 1981 तक का रोड मैप देके गए। उसके बाद जो है एक मीटिंग हुई लखनऊ में, तो लखनऊ में जो है वो तीसरा प्लान देके गए 2001 तक का। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1927 से और अब आ गए 2001 तक आ गए, ठीक है। तो अब तक हम समझ लेते हैं कि वो तीनों प्लान में क्या था, ठीक है। तो यस, इन दैट केस नागपुर के अंदर जो है वो एक, बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो मेजोरिटी ऑफ कंट्री हैव डिस्ट्रॉयड देयर रोड्स, राइट। तो जिन जिन कंट्री ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो उनके रोड नेटवर्क खराब हो गए। तो हमने ये किया कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम क्या करते हैं, प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So in that Nagpur, the conference of the chief engineers are held at the 1943 to discuss about the improving the condition of the road, right? उनका क्या एम था कि हमें रोड की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये उन्होंने मीटिंग बुलाई सभी चीफ इंजीनियर्स की, ठीक है, ठीक है। तो चीफ इंजीनियर जो है वो स्टेट कैपिटल में बैठता है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है जूनियर इंजीनियर, राइट। उसके ऊपर होता है असिस्टेंट, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, उसके ऊपर आता है असिस्टेंट इंजीनियर, और असिस्टेंट इंजीनियर का जो ग्रुप है उसके ऊपर आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो ग्रुप है उसके ऊपर आएगा चीफ इंजीनियर। इसमें कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ राज्यों में डेप्यूटी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके आगे डेप्यूटी लगा दूं, डेप्यूटी असिस्टेंट इंजीनियर, तो असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे काम करेगा डेप्यूटी। जैसे हमारा है कि चीफ मिनिस्टर है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर जो है उसका दर्जा सबसे ऊपर, उसके नीचे नंबर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, DYCM लेटर से। तो जिसके भी आगे मैं डेप्यूटी लगाता हूँ, ठीक है, वो उसकी जो पोस्ट है उसके नीचे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया DYE, तो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है ना, वो हर जिले में एक होता है, ठीक है, अलग अलग विभाग में एक एक होता है। जैसे कि इरिगेशन का डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो उनके जिले में काम करेगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं के जिले में मान लीजिए कि कोई दूसरी ब्रांच है, ठीक है, इरिगेशन के अलावा वाटर सप्लाई का है, तो वाटर सप्लाई का डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग होगा, ठीक है। और जहाँ पे कोई भी डैम है, ब्रिज है, तो उसका इंजीनियर भी अलग होगा। तो ये सारे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं। ये पूरे गुजरात में एक ही चीफ इंजीनियर, राइट। और उनकी रिपोर्टिंग सीधी चीफ मिनिस्टर के अंडर में होती है। और चीफ मिनिस्टर, सारे कंट्री के चीफ मिनिस्टर एक जगह पे इकट्ठा हुए 1943 में। क्लियर हुई बात, राइट। आप जो भी एग्जाम देते हो यहाँ से स्टार्ट करते हो, गवर्नमेंट एग्जाम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, जूनियर इंजीनियर से, ओके। जेई जूनियर इंजीनियर के ऊपर सीनियर आता है, ठीक है, वो सीनियरिटी लेवल के आधार पर होता है, लेकिन ये सारी पोस्ट है। तो आप एग्जाम देते हो जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, लेकिन जूनियर इंजीनियर बनने के बाद आप 20 साल, 30 साल, 35 साल अपने हिसाब से काम किया तो कभी कभार कोई डेप्यूटी बन जाता है, ठीक है। जिनकी पोस्ट ए से स्टार्ट हुई तो वो डेप्यूटी बन सकता है 20 या 30 साल में। तो इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में से कोई जो अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो उनका नॉलेज बेस्ट है, वो चीफ इंजीनियर बनेगा, ठीक है। तो गुजरात के लिए जो है वो गांधीनगर में चीफ इंजीनियर होता है, और उनके आदेश आदेश के आधार पर सारे जो इंजीनियर है वो काम करेंगे, ठीक है। तो सारे चीफ इंजीनियर जो है वो इकट्ठा हुए नागपुर में 19, इट इज अ वेरी बिग बिग टास्क, ठीक है। क्योंकि एक ही फील्ड के लोगों को, एक ही लेवल पे बैठे हुए व्यक्तियों को साथ में बिठाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाना बहुत मुश्किल काम है। तो
ये जो है वहां पे मीटिंग हुई, और द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज फेमस एज ए नागपुर प्लान। उन्होंने जो डिस्कस किया, ठीक है, उसका नाम जो है वो निकल के आया नागपुर प्लान। तो जब भी मैं आपको बताऊं कि नागपुर प्लान है, ये प्लान, आपको मैंने कुछ नंबर दिए, तो अगर मैंने उसको लेबल कर दिया नागपुर प्लान के तहत, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 1943 में मीटिंग हुई थी, 1943 के 63 तक प्लान था, उसमें क्या क्या था वो होना चाहिए, ठीक है, और वो प्लान 1961 तक कंप्लीट हो गया था। वो सारी चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। So the main thing is that 20-year development program for the period of 1943 to 63 was finalized, right? वो फाइनल हुआ कि ये हम करेंगे, एंड इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर द एंड कोऑर्डिनेट द रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द प्लान मैनर। ये सबसे पहला मीटिंग था कि उन्होंने आया कि ये पहला प्रयत्न था, फर्स्ट अटेम्प्ट, कि रोड डेवलपमेंट अब जो है वो कोऑर्डिनेट से चलेगा, कोऑर्डिनेशन की वजह से चलेगा, ठीक है, कि अगर नागपुर में अगर किसी भी राज्य में रोड बनता है तो एक कोऑर्डिनेटर है, उनको मालूम होना ही चाहिए कि यहाँ तक पहुंचा, तो ठीक है, और वो रिपोर्टिंग करेंगे किसी एक व्यक्ति को जो उसका चीफ है, जो चेयरपर्सन है, ठीक है। सो उसमें क्या था कि उसमें जो मीटिंग थी उसमें, आप बेटर है कि उस मीटिंग में चले जाइए, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि उस मीटिंग हुई 1943 में, आप वहां पे बैठे हैं, ठीक है, तो वो मीटिंग में सारी डिस्कशन हो रही है कि सर हम कैसे काम करेंगे। किसी ने बोला कि सर क्या होगा मैं, तो उन्होंने उनमें से एक इंजीनियर ने बताया कि आप पूरा क्लास जो है वहां चला जाइए 1943 की मीटिंग में, ठीक है, और उनसे किसी एक ज्यादा होगा कि जिसको आइडिया था कि ऐसे प्लान हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सर हम एक काम करते हैं कि जो हाईवे हम बनाते हैं ना उसको हम कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है, कि हम 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देंगे। नागपुर में यह डिसाइड हुआ कि 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, कि पहले तो हम नेशनल हाईवे, ठीक है, दूसरा स्टेट हाईवे, थर्ड डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। तो जो भी हम काम करेंगे उसको हम डिवाइड करते जाएंगे 4 कैटेगरी में, कि सर ये काम है ना वो नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आएगा, दूसरा जो काम है वो स्टेट हाईवे की कैटेगरी में आएगा, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट, और फोर्थ जो है वो विलेज रोड की कैटेगरी में आएगा। तो जिन्होंने भी ये सजेशन दिया उन्होंने डेफिनेशन भी दे दी कि सर हम नेशनल हाईवे किसे कहेंगे, कि नेशनल हाईवे की डेफिनेशन ये रहेगी कि जो रोड दो राज्यों के बीच जो है वो पास होगा, ठीक है, इंटर इंटर स्टेट जो है वो क्रॉस करेगा, दैट मीन्स द नेशनल हाईवे विच वुड पास थ्रू द स्टेट्स and places having the national importance for the strategic, administrative and other purposes. The word strategic is a very important thing. मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कंट्री को स्ट्रेटेजिकली आपको कॉम्पीट करना है तो आपके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, एक ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहां से आप सारी चीजें मैनेज कर पाए, ठीक है। सो उन्होंने ये डेफिनेशन भी दे दिया, तब से लेके आज तक हम यही डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले किसी ने नेशनल हाईवे की डेफिनेशन नहीं दी थी, ठीक है, अगर दी भी है तो मालूम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो पुराने जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो इफ यू फाइंड सम हिस्टोरिकल बुक्स देयर देयर हमारे पास इतिहास जो है अब 1943 तक का ही है, लेटेस्ट है, लेकिन हमारा इतिहास जो है वो 5000 ईयर पुराना है। आप उनकी इतिहास की किताब पढ़ के भी आप रिफर कर सकते हैं कि देयर वेर रोड्स आर देयर, दे हैव आल्सो क्लासिफाइड द रोड बेस्ड ऑन देयर पर्पस, ठीक है। 5000 साल पहले भी रोड्स थे, उनका नाम हालांकि अलग होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है वो डिवाइड किए थे। तो वैसे ही उनके आधार पे जिन्होंने भी सजेशन दिया है उनके माइंड में ये हिस्ट्री हो ही होगी, तभी तो वो डिवाइड कर पाया, ठीक है। तो आप रिफर कीजिए कि कब कब जो है इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सारी चीजें सही ना हो, ठीक है, तो दैट यू नीड टू डिसाइड, ठीक है, कि गूगल ने जो बता दिया वो सही है ऐसा नहीं होता। ओके, सो समटाइम्स फॉल्स इंफॉर्मेशन आर आल्सो देयर। तो उन्होंने डेफिनेशन बता दी कि स्टेट हाईवे क्या करेगा, कि स्टेट हाईवे इज द मेन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है।
Then district road, which would be the traffic from the main roads to the interior of the district. जो मेन रोड है उससे जो ट्रैफिक कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड कहेंगे. According to the importance, and some consider as a major district road and minor district road also, right? So major district road, main roads of the states, and based on the strategic location, you can have a national highways and village road. So which would link the villages to the road system. ठीक है. सो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं. कौन बताएगा? उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं कि आप रहते हो जिस स्टेट में उसमें गांव कितने हैं, तभी तो आप नहीं पाएंगे. कितने गांव है तो कितने रोड चाहिए बताइए. चलो, गुजरात में कितने गांव है, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे प्लानिंग, अदरवाइज आप प्लान नहीं कर पाएंगे. सर बिहार का बताओ. સર 18,554 आपको બતાડે છે सोचना पड़ेगा. 2001 સુધી. સર कि सर मुझे विलेज रोड को बनाना है तो कितने गांव है टोटल. સર અવાજ નથી આવતો તમારો. In fact, my connection was lost. Okay, so आपका ये टास्क कब रहेगा कि जिनको भी क्वेरी थी, ये संतोष आप बोल सकते हैं. ठीक है सर अभी जो है बिहार में विलेज नहीं सर, गांव गांव. विलेज मतलब विलेज गांव का है विलेज. ओके, ठीक है. तो आपका ये टास्क कब रहेगा कि आप सभी को जो है इंटरनेट पे जाके थोड़ा सर्च आउट करना है. ठीक है, तो कि कितने, अगर आपको गांव को कनेक्ट करने हैं तो कितना, मतलब आप मुझे एक काम ये बता, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ योर स्टेट. સર ગુજરાતમાં 2001 સુધી નો જે બતાડે છે ને એમાં 18,544 વિલેજીસ છે. हाँ हाँ. So sometimes we need to take care about the updated data also, right? So we are living in 2021. So we are 20 year back. We are lagging the 20 years. ठीक है, तो आपका टास्क ये रहेगा, मैं आपको टास्क बताता हूँ कि आपको अपने स्टेट में, अपने आजू बाजू जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन क्या है, कौन सा है, वो आपको लिस्ट बनाना है. ठीक है, आप अपने हिसाब से देखें, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, और हार्डली मैं कहता हूँ कि 15 मिनट तक ही सर्च कीजिए. ठीक है, जितना इन्फॉर्मेशन है वो लेके आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा लोकेशन इंपॉर्टेंट है. एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्टेट का कहाँ से होता है, ठीक है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट का कहाँ से होता है, वो आपको मालूम हो जाएगा. ठीक है, आप रोल नंबर लिख सकते हैं
और आप लीव भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट नहीं। टास्क आपको करना होगा, अदरवाइज जब आप कॉलेज आओगे तब मैं आपको पनिशमेंट तो ढेर सारी दूंगा, आप फ्री नहीं हो पाओगे, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है कि લાઈગમાં નથી એમ કહેવાય ને તમે, આપણે લાઈગમાં નથી આવતા. So there is a basically a typical Gujarati word. So when you come to the college, we will be face to face and we will give you the best suitable punishment for your work if you have not completed your work, right? You can leave the meeting, don't worry. And સર if you have any કોલેજ kind ક્યારે of ચાલુ query, થશે? કેટલાક દિવસમાં? મોસ્ટ પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ વીક. જ્યારે મેં તમને કીધું કે નેક્સ્ટ વીકમાં થશે, એ પછી જે છે એક ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી આવી સેન્ટ્રલ કોઓર્ડિનેટર તરફથી કે ભાઈ આપણે 4th સેમેસ્ટર ચાલુ નથી કરતા, પણ જ્યારે ચાલુ કરીએ છીએ ત્યારે તમને કહેવામાં આવશે ચોક્કસ, રાઈટ? સો you will be informed, right? So most probable you can simply say the starting of your physical mode is you can simply 22nd February. 22nd February sir. may most probably ચાલુ થઈ જ જશે. યસ સર. Okay, you can leave. If you have any kind of doubt, you can ask me and you can leave. અને પછી સેશન છે ને 11:15. So you can leave. હેલો સર. હેલો સર. હા હા સર જે આપણા જે જિલ્લામાં આવતું હોય એ બધા આજુબાજુ ગામડાનું એ જ છે ને સર? હા, કયું અગત્યનું લોકેશન છે કે જેના વિશે તમારે જાણવું જરૂરી છે? હા વહીવટ ક્યાંથી થાય છે? વહીવટ ક્યાંથી થાય છે? હા સર. રાઈટ. ચાલો બીજું કોઈની ડાઉટ છે? લીવ થઈ ગયો ફટાફટ.